हाँ जी. Today I am starting with, I have also discussed with you the enzymes involved in the process of DNA replication. So yesterday we explained the whole process and the enzymes involved. Again I am repeating the 4 to 5 type of enzymes that are involved in the process of DNA replication. Okay बेटा, इससे पहले कि मैं ट्रांसक्रिप्शन पे जाऊं फिर से एक बार बता रही हूँ. There are 5 enzymes which are playing a significant role in the process of DNA replication. First enzyme is helicases. As the name itself indicates, the helicases enzymes are those enzymes which are involved in the opening of the DNA helix. ठीक है, वो एंजाइम जो डीएनए हेलिक्स की ओपनिंग में इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, those enzymes are known as helicases enzyme. So as I have already discussed with you that DNA is a long polymer and both the strands of the DNA, they are intertwined with each other. So opening of the entire DNA at the same time is not possible because it is energy demanding process. तो इसीलिए डीएनए हेलिक्स जो है उसकी ओपनिंग जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है and that point is known as origin of replication. And when the two strands of the DNA they open, they create a Y-shaped structure. Okay, after opening of the both strands, so this Y-shaped structure which actually arise from the origin of replication, it is known as replication fork. Okay, but now what happened? As you know that both the strands of the DNA they bear the nitrogenous bases. And on the first strand, if some nitrogenous bases are there, then their corresponding nitrogenous bases, or you can say complementary nitrogenous bases, are present on the adjacent DNA strand. So there is a kind of a strong bonding that exists between the nitrogenous bases, and you know that these bonds are the hydrogen bonds. तो अगर वो कहता है कि जो हेलिकेसेस एंजाइम है वो डीएनए हेलिक्स को ओपन तो कर देते हैं origin of replication प्लेस से, पर अभी भी जो ओपन डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच में टेंशन बनी रहती है. ठीक है, वो फिर से अपने आप को रीजॉइन कर सकते हैं. तो टू रिलीव दिस काइंड ऑफ टेंशन which actually develops in the opened DNA strand, we have another type of enzymes and they are known as the topoisomerases. So these topoisomerases are such type of enzymes which relieve the tension that generally happens during the opening of the DNA helix in both the strands of DNA. Okay, children. Another is DNA polymerase. So main enzyme of DNA replication is DNA polymerase. So its main function is polymerization. Polymerization means extension of the dotted DNA segment by joining of the nitrogenous bases. और join कैसे करनी है वो भी आपको पता है. They read the bases that are present on the first strand of the DNA whose polarity is in 3' to 5' direction. तो देखो अगर polarity parental strand की 3' to 5' direction में है तो बनने वाला डॉटर स्टैंड जो उसकी हेल्प से बन रहा होगा उसकी पोलैरिटी 5' to 3' डायरेक्शन में होगी. तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नॉट ओनली डू द टास्क ऑफ जॉइनिंग ऑफ द नाइट्रोजेनियस बेसेस by reading the corresponding base present on the first strand of DNA, side by side it is also doing the task of DNA repair. मैंने आपको बताया था the efficiency, the speed of the DNA polymerase enzyme is very high. Within few seconds, it completes the entire process of DNA replication. What this enzyme do specifically? कि ये enzyme जो है बेशक उसकी स्पीड कितनी भी ज्यादा है पर वो enzyme हमेशा correct basis ही join करता है. Okay, but if sometimes accidentally the enzyme join the incorrect base, then joining of that incorrect base creates mutations, and you know that it may be any kind of mutations. ठीक है, तो मोस्टली जो बेसिस रॉन्ग बेसिस ज्वाइन होने से म्यूटेशंस होती है वो म्यूटेशंस पॉइंट म्यूटेशंस हो सकती है. ठीक है, समटाइम्स दे मे बी क्रोमोसोमल टाइप ऑफ म्यूटेशंस. म्यूटेशन इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ लिथल केस. तो इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम साइड बाय साइड रिपेयर कर देता है. अगर उसे लगता है कि उससे जल्दबाजी में कोई इनकरेक्ट बेस ज्वाइन हो गया है तो ये फिर से वापस आता है और फिर से वो कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस को रीड करता है पेरेंट स्ट्रैंड पे और फिर करेक्ट बेस जो है उसको वहां पे ज्वाइन करता है इनकरेक्ट बेस को सब्स्टिट्यूट करके. ओके बेटा, फिर मैंने आपको बताया था प्राइमेस एंजाइम. प्राइमेस एंजाइम का मेन फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमर स्ट्रैंड. तो प्राइमर स्ट्रैंड इज अ काइंड ऑफ ए टेम्परेरी स्ट्रैंड
that came into existence before the synthesis of the daughter stand. ठीक है, डॉटर स्टैंड के लिए एक लेआउट जो तैयार होता है, ठीक है, जो प्रीलिमिनरी लेआउट है जिसके ऊपर फाइनल डॉटर स्टैंड बनना है, उसको हम प्राइमर स्टैंड कहते हैं। तो एग्जैक्टली डॉटर स्टैंड पहले नहीं बनता, उससे पहले प्राइमर स्टैंड बनता है, उसके ऊपर डॉटर स्टैंड बनना शुरू होता है। ठीक है बेटे, प्राइमेस एंजाइम का अनदर फंक्शन है कि वो बेसिस को सॉर्ट आउट करके रखता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए, ताकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फटाफट उन बेसिस को उठाए एंड डॉटर स्टैंड पे बाइंड करना शुरू कर दे। ओके, देन हमारे पास है डीएनए लाइगेसेस। तो डीएनए लाइगेसेस एंजाइम जो है वो डीएनए फ्रैगमेंट्स को जॉइन करते हैं, बिकॉज़ यू नो दैट द डॉटर स्टैंड व्हिच एक्चुअली डेवलप्स, ठीक है, by taking a help from the second strand of the DNA whose polarity is in 5' to 3' direction. So this new daughter strand, as it develops in 3' to 5' direction, which is actually not the field of working of DNA polymerase enzyme, so its formation is a slow one. तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो स्टैंड बनता है डॉटर स्टैंड, जो 5' to 3' पैरेंटल स्टैंड की हेल्प से बनता है, वो हमेशा एक डिसकंटीन्यूअस स्टैंड है और फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में बनता है। पर उन फ्रैगमेंट्स को जॉइन कौन करता है, तो वो फ्रैगमेंट्स जिन्हें हम ओकाज़की फ्रैगमेंट्स के नेम से जानते हैं, these fragments are joined by the enzyme DNA ligase। ठीक है बेटे, तो अब ये पांचों एंजाइम आपके टिप्स पे होने चाहिए, कभी भी पूछे जाए यू आर एबल टू गेट द आंसर। Yes children, we are starting with the main topic. Again it is a 5-mark question। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे और जो चीजें मैं बता रही हूँ उस पर ध्यान देंगे। So if we have to define the process of transcription, what actually is transcription? So transcription is actually the synthesis of messenger RNA from the DNA. Okay बेटे, तो I have already discussed with you that opening of the DNA helix, it actually happens twice. ठीक है, DNA helix जो है उसकी opening 2 बार होती है, first for the purpose of synthesis of the daughter DNA और you can see replication, ठीक है, जिसमें वो अपने डॉटर रेप्लिकास बनाता है, एंड सेकंड टाइम व्हेन द ओपनिंग ऑफ द डीएनए टेक्स प्लेस, इट इज एक्चुअली फॉर प्रोड्यूसिंग द मैसेंजर आरएनए, बिकॉज़ यू नो दैट दिस मैसेंजर आरएनए लेटर हैज टू प्रोड्यूस द कॉरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड्स एंड दिस अमीनो एसिड्स दे जॉइन इन अ पर्टिकुलर वे टू गिव द कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम। ठीक है, तो अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा तभी ट्रांसलेशन होगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए जो डीएनए से होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब देखो बेटे, अगर मैं मैसेंजर आरएनए कह रही हूँ तो आपको पता है कि आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक मैसेंजर आरएनए तैयार करना है ट्रांसक्रिप्शन में। तो इसीलिए वो कहता है कि व्हेन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए ओपन्स, ठीक है, एज अर्लियर इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, both the strands they act as guiding strand, but this is not the case in case of transcription। ऐसा ट्रांसक्रिप्शन में नहीं होता। ओपनिंग तो होती है डीएनए हेलिक्स की, ठीक है, दोनों ही स्टैंड ओपन हो जाती हैं, पर याद रखिएगा कि फर्स्ट स्टैंड जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' डायरेक्शन में है, वो स्टैंड जो है यहाँ पे गाइडिंग स्टैंड की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस होनी है, तो यहाँ के एंजाइम का नेम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये चीज नोट करेंगे। रेप्लिकेशन में जो एंजाइम था वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था, पर मैसेंजर आरएनए की जब ट्रांसक्रिप्शन में सिंथेसिस होनी है तो नेम ऑफ द एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, ये जो फर्स्ट स्टैंड है डीएनए का जो 3' to 5' डायरेक्शन में रन कर रहा है, उसमें प्रेजेंट नाइट्रोजेनियस बेसेस को रीड करता है। ठीक बेटे, जैसे उसने फर्स्ट नाइट्रोजेनियस बेस रीड किया एडेनाइन है, तो फिर उसने मैसेंजर आरएनए जो है जो तैयार कर रहा है वो उसमें एडेनाइन के साथ किसको ज्वाइन करना है। तो सभी बच्चों को पता है कि वैसे तो एडेनाइन के साथ हमेशा थाइमिन ज्वाइन होना होता है, पर क्योंकि यहाँ पे ये आरएनए है, ठीक है, कोई नई डीएनए सेगमेंट नहीं तैयार हो रही, आरएनए है, तो इसीलिए एडेनाइन कभी भी आरएनए के केस में थाइमिन के साथ बाइंड कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहां थाइमिन होता ही नहीं है। क्या होता है उसकी जगह पे, यूरासिल होता है। तो एडेनाइन को यहाँ पे किसके साथ बाइंड होना पड़ेगा, यूरासिल के साथ बाइंड होना पड़ेगा। अगर ग्वानिन है तो ग्वानिन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइटोसिन इज देयर, क्योंकि साइटोसिन इज आल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ आरएनए, तो यहाँ पे वो साइटोसिन के साथ बाइंड हो जाएगा। बस आप इतना याद रखेंगे
कि एडेनिन थाइमिन के साथ आरएनए सिंथेसिस में कभी बाइंड नहीं होगा। आरएनए में उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो एडेनाइन यहाँ पर किसके साथ बाइंड होगा, यूरासिल के साथ बाइंड होगा। ओके बेटे, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, there is a question that is coming in the mind of all the students, and the question is why both the strands of DNA they are not acting as a guiding strand। ठीक है, हम क्यों एक ही मैसेंजर आरएनए तैयार करें, दो भी तो कर सकते थे। तो उस केस में वो कहते हैं कि if both the strands of the DNA they act as a template guiding strand, तो what is the problem create। तो उससे क्या होगा, अगर फर्स्ट स्ट्रैंड जो है उससे भी एक मैसेंजर आरएनए बन रहा है एंड डीएनए का जो सेकंड स्ट्रैंड है वो भी एक मैसेंजर आरएनए अगर बना रहा है, तो दोनों ही मैसेंजर आरएनए जो है उनको जब हम आपस में उनके नाइट्रोजेनियस बेसिस को कंपेयर करेंगे, देन यू विल फाइंड आउट दैट द फर्स्ट मैसेंजर आरएनए, ओके, व्हिच इज द डॉटर वन, उसका अगर सेकंड मैसेंजर आरएनए के साथ आप कंपेयर करोगे तो दोनों में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस प्रेजेंट है, और दोनों मैसेंजर आरएनए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होने की वजह से क्या कर जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे और वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें यहाँ किसी डीएनए की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे आरएनए की जरूरत है, और उसी आरएनए से आगे क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। एंड दूसरी चीज जो है वो ये है कि इफ यू प्रिपेयर these two such type of messenger RNAs, then the type of nitrogenous bases that are present on these messenger RNAs later when they arrange themselves in the group of 3, आपको पता है कि तीन नाइट्रोजेनियस बेसिस को अगर हम एक साथ रीड करते हैं तो उसे हम कोडॉन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इमेजिन करिए कि मैसेंजर आरएनए पे पहला बेस एडेनाइन है, दूसरा बेस यूरासिल है और तीसरा बेस क्या है, ग्वानिन है। तो मेरे पास वर्ड हो गया AUG। तो ये 3 ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजेनियस बेसिस क्या होते हैं, कोडॉन होते हैं। ठीक है, और एक कोडॉन हमेशा एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। तो कहते हैं कि हमारे पास ऐसे 2 मैसेंजर आरएनएस आ जाएंगे जिनमें कोडॉन्स जो है वो क्या कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं, व्हेन दे कोड फॉर द अमीनो एसिड्स, सो दीस अमीनो एसिड्स आल्सो वेरी। ठीक है, there are different type of amino acids that are present in the first messenger RNA, and another type of amino acids are there with the second messenger RNA. So in this way the type of proteins which later has to be synthesized by these messenger RNA it also differs। ठीक है, तो वो भी different proteins बन जाएंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि डीएनए स्ट्रैंड से तैयार होने वाले मैसेंजर आरएनए एक ही टाइम में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनाने लग जाएंगे, जिससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और उसको मैनेज करना जो है इट बिकम पॉसिबल। तो दीस आर द 2 बेसिक रीजंस कि व्हाई नॉट बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए दे एक्ट एज गाइडिंग स्ट्रैंड, only the first strand whose polarity is in 3' to 5' direction it behave as a guiding strand। ओके बेटे, उसके बाद देखो नीचे उसने हमें टॉपिक दिया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बताना चाहता है वो आपको। ठीक है, यहाँ में मैं बाद में पहुंचूंगी, फिर से सुनेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। तो देखो बेटे, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें से 3 मेजर कंपोनेंट्स which are playing an important role in the process of transcription, they are known as number 1 a promoter, ठीक है, जिसे हम प्रमोटर रीजन कहते हैं, second one is known as a structural gene, and third one is known as what is terminator। ओके बेटे, आप ध्यान से सुनेंगे, मैंने आपको ये बताया कि सिर्फ डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में से ओनली द फर्स्ट स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' डायरेक्शन है it behave as a guiding strand for the synthesis of messenger RNA। ठीक बेटे, तो इस स्ट्रैंड को तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या नेम दिया है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का नेम दिया है। ओके, एंड अब वो कहता है कि दूसरा स्ट्रैंड, दूसरा पैरेंट स्ट्रैंड जो ट्रांसक्रिप्शन में मैसेंजर आरएनए नहीं बनाता, ठीक है, वो ट्रांसक्रिप्शन में कोई रोल प्ले नहीं करता, पर फिर भी साइंटिस्ट जो है उन्होंने उसको क्या नेम दिया है, उन्होंने उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहा है। अब सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि व्हाई इट इज नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड, बिकॉज़ इट इज नॉट कोडिंग फॉर एनीथिंग। तो देखो उसके पीछे साइंटिस्ट जो है वो ये रीजन देते हैं कि ये जो तीनों कंपोनेंट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के, प्रमोटर रीजन, देन वी हैव स्ट्रक्चरल जीन एंड वी हैव टर्मिनेटर, अगर हमने ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इनकी लोकेशन बतानी है तो वो लोकेशन का रेफरेंस हम सेकंड स्ट्रैंड के बेसिस पे देंगे जिसको हमने
क्या बोला है, कोडिंग स्टैंड बोला है, बेशक वो कुछ भी कोड नहीं करता। तो देखो कोडिंग स्टैंड की पोलैरिटी कौन सी डायरेक्शन में है, 5' to 3' डायरेक्शन में है। और जो एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है यानी फर्स्ट स्टैंड है डीएनए का, उसकी पोलैरिटी 3' to 5' डायरेक्शन में है। तो इस तरह से आपने इमेजिन करना है कि अगर मैं 2 स्टैंड्स जो है उनको लीनियर वे में दिखाती हूँ, 2 लाइंस के द्वारा दिखाती हूँ। आई हैव ड्रॉन 2 लाइंस ऑन द ब्लैक बोर्ड, स्ट्रेट लाइंस, एंड फर्स्ट लाइन पे मैं लिखती हूँ 3' to 5'। इसका मतलब ये स्टैंड जो है मेरा, वो कौन सा स्टैंड है, ये स्टैंड मेरा जो है वो टेम्पलेट स्टैंड है जिससे मैसेंजर आरएनए बनना है। और नीचे वाले स्टैंड पे अगर मैं लिखती हूँ 5' to 3', इसका मतलब ये स्टैंड वो है जिसको साइंटिस्ट ने कौन सा स्टैंड बोला है, scientists call this stand as coding stand because all the references that are given accordingly to this stand, ठीक है, which has a polarity in 5' to 3' direction। तो अगर मैं आपको कहती हूँ कि भी प्रमोटर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पर, ठीक है, जो कोडिंग स्टैंड है उसके 5' एंड पे प्रेजेंट है। तो देखो कोडिंग स्टैंड मेरा नीचे वाला स्टैंड जो है उसको मैंने कोडिंग स्टैंड कहा था, तो उसका फर्स्ट एंड 5' होगा और उसका जो लास्ट वाला एंड है वो क्या होगा, 3' होगा। इसका मतलब प्रमोटर रीजन सबसे पहले अरेंज है, ठीक बेटे। उसके बाद मैं कहती हूँ कि जो स्ट्रक्चरल जीन है इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। तो इसका मतलब उसका भी रेफरेंस मैंने किसके अकॉर्डिंग दिया है, अकॉर्डिंग टू द कोडिंग स्टैंड। So this means next to the promoter is a what is present, structural gene is present, okay बेटे। देन उसके बाद वो कहता है कि टर्मिनेटर को अगर मैं बोलती हूँ कि अकॉर्डिंग टू द कोडिंग स्टैंड द टर्मिनेटर रीजन इज एक्चुअली प्रेजेंट एट द 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्टैंड। इसका मतलब जहां पे वो कोडिंग स्टैंड खत्म हो रहा है वो स्टैंड 3' एंड है और वहां पे हमारे क्या प्रेजेंट है, तो वहां पर वो कहता है कि वहां पर जो है क्या प्रेजेंट है, तो वहां वो कहता है कि हमारा टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट है। देखो नेम से पता लग रहा है, P फॉर प्रमोटर, प्रमोटर मींस उसने प्रमोट करना है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, ठीक है। T फॉर टर्मिनेटर, तो टर्मिनेटर जो है उसने क्या करना है, तो टर्मिनेटर ने ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को सेव करना है। एंड यू आल्सो नो द नेम ऑफ द एंजाइम बिकॉज़ हियर द सिंथेसिस ऑफ द मैसेंजर RNA टेक्स प्लेस। This means the name of the enzyme here is DNA dependent RNA polymerase, okay बेटे। now imagine करिए अपने माइंड में कि आपको एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट नजर आ रही है और उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है, ठीक है, उसमें आपको डीएनए के 2 स्टैंड्स नजर आ रहे हैं। एक स्टैंड जो है वो 3' to 5' डायरेक्शन में है एंड दूसरा स्टैंड 5' to 3' डायरेक्शन में है। और what I am saying कि the promoter region is present on the 5' end of the coding stand। तो इमेजिन करिए कि नीचे वाला स्टैंड कोडिंग स्टैंड था और उसका फर्स्ट स्टैंड 5' end था, वहां पे प्रमोटर अटैच, ठीक है, as it is given in your book। देखो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए आपको प्रमोटर लिखा हुआ है उन्होंने, तो वो वाला एंड जो है वो प्रमोटर की लोकेशन उसने नीचे वाले स्टैंड के बेस पे दी है जो 5' to 3' में रन कर रहा है, उसे कोडिंग स्टैंड बोला गया। फिर उसके बीच में स्ट्रक्चरल जीन है एंड देन लास्ट में क्या है, टर्मिनेटर है, ओके बेटे। अब देखो प्रमोटर रीजन का फंक्शन क्या है। प्रमोटर रीजन इज एक्चुअली दैट पार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। प्रमोटर रीजन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का वो पार्ट होता है where the RNA polymerase has to be bind so that it initiate the process of transcription, ठीक है। तो RNA polymerase एंजाइम जो है वो सबसे पहले आता है और आके कौन से रीजन को टच करता है, प्रमोटर रीजन को टच करता है। There is a binding site present at the promoter region, so the DNA dependent RNA polymerase it bind at that binding site which is actually present at the promoter region। So as soon as it gets bind with the promoter region, what happen? You know that कि promoter region से ही आगे कौन सी जीन प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है, ओके बेटे। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ बाइंड हो जाएगा, इट पुशेस द स्ट्रक्चरल जीन। इमेजिन करिए कि वो स्ट्रक्चरल जीन को आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, तो आपके माइंड में ये आ रहा है कि आगे आगे स्ट्रक्चरल जीन चल रही है एंड पीछे पीछे क्या चल रहा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चल रहा है। So what this RNA polymerase enzyme has to do now, because it is a polymerase enzyme, so its only function is polymerization. So now this RNA polymerase enzyme has to read what kind of bases are present on the first strand of DNA. If adenine is there, then the RNA polymerase enzyme read that adenine is present on DNA,
नाउ व्हाट फेज ही हैज टू पिक नाउ, तो देखो एडेनाइन को किसके साथ बाइंड करना है, उसने यूरासिल के साथ बाइंड करना है। तो स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो आगे आगे आरएनए पॉलीमरेज जो है उसके पीछे पीछे चल रहा है, ठीक है। तो यू कैन से द स्ट्रक्चरल चेन इट फ्लैंक ओवर द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉलोड बाय द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, and this RNA polymerase enzyme is now going to read the bases that are present on the first end. If adenine is there, now he is joining what? Uracil. If guanine is there, he is joining what? ठीक है, guanine के साथ cytosine join करना है। अगर यूरासिल देखो उस साइड थायमीन है, तो थायमीन जो है डीएनए पे तो हो सकता है ना, तो थायमीन डीएनए पे जरूर हो सकता है, पर आरएनए में उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ठीक बेटे, एडेनिन रहेगा। इस तरह से उसने कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस अटैच करते रहना है। तो इमेजिन करिए कि आरएनए जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है बेसिस को अटैच करता जा रहा है, व्हाट हैपन, ठीक है, मैसेंजर आरएनए का जो स्टैंड है उस एक्सटेंड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ओके, नाउ व्हाट हैपन, द स्ट्रक्चरल चेन इट फाइनली रीचेस द टर्मिनेटर रीजन। अब ये स्ट्रक्चरल चेन टर्मिनेटर रीजन के पास पहुंच जाती है, एंड यू नो दैट द स्ट्रक्चरल चेन इज फॉलोड बाय आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। So since the structural chain it reaches the terminator region, so RNA polymerase enzyme it also comes in contact with the terminator region. Because it is a terminator region, now what information is conveyed to the RNA polymerase enzyme by the structural gene, that now this is the time to cease the process of transcription. Okay बेटे, तो आपको कहते हैं कि RNA polymerase enzyme जो है, इमेजिन करो कि कोई लंबी सारी सेगमेंट लेके आ रहा है मैसेंजर RNA की, और टर्मिनेटर रीजन पे उसको ये मैसेज मिलता है कि बस इतना ही मैसेंजर आरएनए बनाना था। तो वहां पे आके वो क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उस मैसेंजर आरएनए को छोड़ देता है, ठीक है। तो जितनी सेगमेंट मैसेंजर आरएनए की तैयार हुई है, जिसको अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लीव कर चुका है, दैट सेगमेंट ऑफ द मैसेंजर आरएनए इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज नेसेंट आरएनए, ठीक है बेटे। नेसेंट वर्ड यू हैव जनरली हर्ड इन योर केमिस्ट्री क्लास, नेसेंट आरएनए, NASCENT, ठीक है। तो दिस इज द लेफ्ट ओवर आरएनए, मैसेंजर आरएनए which is now left by the this RNA polymerase enzyme, this is known as the nascent RNA. तो देखो ये पूरा प्रोसेस जो है वो कहाँ पर हुआ था, ये पूरा प्रोसेस जो है वो 3' to 5' स्टैंड के पास जब आरएनए पॉलीमरेज मूव कर रहा था तब हुआ था, ठीक है। तो जैसे ही वो एंड पे पहुंच जाएगा टर्मिनेटर रीजन पे, आरएनए पॉलीमरेज नाउ गेट फ्री एंड नेसेंट आरएनए आल्सो गेट फ्री। नाउ व्हाट हैपन फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंड, ठीक है। अब वो फर्स्ट स्टैंड से उसने चलना कहां से शुरू किया था, 3' एंड से चलना शुरू किया था एंड 5' तक वो पहुंच चुका है। अब वो वहां से जंप करके उसके नीचे वाला स्टैंड, जिसको मैंने कौन सा स्टैंड बोला था पहले, कोडिंग स्टैंड बोला था, उस पे जंप कर जाएगा, ठीक बेटे। अब वो उसके एंड पे जंप किया है, तो आपको मैंने बताया कि एंड वाला जो उसका पार्ट है वो उसका 3' एंड है सेकंड स्टैंड का, क्योंकि उसका फर्स्ट एंड कौन सा था, 5' एंड था, तो लास्ट वाला उसका एंड कौन सा है, 3' एंड है, ठीक है। तो वहां पे 3' एंड पे अब कौन आ जाएगा, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा, और वो एंड जो है जितने भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कंपोनेंट्स है ना, वो सारे वहां पे रिवर्स हो जाएंगे। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि प्रमोटर रीजन जो है वो कोडिंग स्टैंड के 5' एंड पे प्रेजेंट होता है। तो देखो आप ऊपर वाला स्टैंड जो है वो कोडिंग स्टैंड की तरह बिहेव करने लग जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड पे शिफ्ट हो गया है, इसलिए वो स्टैंड अब क्या बन जाएगा, टेम्पलेट स्टैंड बन जाएगा। तो इमेजिन करो कि प्रमोटर रीजन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टैंड, बिकॉज नाउ द फर्स्ट स्टैंड इट एक्ट एज द व्हाट स्टैंड, कोडिंग स्टैंड, तो उसके अकॉर्डिंग प्रमोटर रीजन जो है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, 5' एंड पे है, और टर्मिनेटर रीजन की लोकेशन कहाँ पे है, 3' एंड पे। बस आपने इतना याद रखना है कि शुरुआत जो है वो 3' to 5' वाले पेरेंटल स्टैंड से होती है, पर जब आरएनए पॉलीमरेज जो है इट रीचेस द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टैंड, दैट इज द 5' एंड ऑफ द फर्स्ट स्टैंड, इट कंप्लीट द प्रोसेस, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए, नाउ इट जंप्स टू द सेकंड स्टैंड। तो सेकंड स्टैंड जो है उसमें फिर कैसे बिहेव करने लग जाते हैं, टेम्पलेट स्टैंड की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, और ऊपर वाला स्टैंड जो है वो कैसे बिहेव करने लग जाता है, इट नाउ बिहेव एज द कोडिंग स्टैंड। अगेन वही चीजें होंगी, आरएनए पॉलीमरेज अगेन कम्स, it comes in contact with the promoter region, it binds with the promoter region, it shifts the structural chain it moves in forward direction, carries the RNA polymerase,
And what the RNA polymerase is doing? RNA polymerase is reading the nitrogenous bases that are present on the parental strand and attach the corresponding bases in a complementary fashion, and finally it again reaches the terminator region, get the information that you have to leave the messenger RNA. The messenger RNA gets separated. Okay बेटे, now this is known as nascent RNA. तो देखो सेकंड स्टैंड से भी एक मैसेंजर RNA तैयार कर लिया, फिर से वो जंप करके ऊपर वाले में चला गया, और इस तरह से ऊपर वाले स्टैंड से नीचे वाले स्टैंड में, फिर नीचे वाले से ऊपर वाले में। तो एक बार अगर ऊपर वाला स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड की तरह बिहेव करता है तो उस टाइम पे नीचे वाला स्टैंड कोडिंग स्टैंड की तरह बिहेव करता है, पर जब वो ऊपर वाले स्टैंड पे मैसेंजर आरएनए कंप्लीट कर देता है तो नीचे आ जाता है, नीचे वाला स्टैंड क्या बन जाता है? टेम्पलेट। तब ऊपर वाला क्या बन जाता है? कोडिंग स्टैंड। फिर जब वो कंप्लीट कर लेता है नीचे से भी मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस, फिर ऊपर चला जाता है और फिर से ऊपर वाला स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड बन जाता है और नीचे वाला स्टैंड कैसा स्टैंड बन जाता है? ठीक है, कोडिंग स्टैंड बन जाता है। तो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी बेटे, स्पीक अप। यस बेटे, स्पीक अप। दिस इज क्लियर? any one of you can speak. Nishant? Yes ma'am. ओके बेटे, बाकी दीपिंदर, तिशा, सिमरन, सबको समझ आ रहा है? अभी जिस भी स्टूडेंट को नहीं पता लगी है ये चीज, वो मुझे बताएगा कि क्या नहीं उसको पता लगा। ठीक है बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझ नहीं आई, कैसे वो फंक्शन करती है, नहीं पता लगा, तो हमें ना तो ट्रांसक्रिप्शन पता लगेगा प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, ना ही हमें ट्रांसलेशन पता लगेगा। इसलिए ऑनेस्ट तरीके से मुझे ये बताएं कि क्या सारी क्लास के स्टूडेंट्स को जो अभी मैंने कंसेप्ट आपको बताया है वो आपको समझ आ गया है कि नहीं आया? हाँ जी बेटे, रेज योर हैंड्स इफ यू आर नॉट वांट टू स्पीक, रेज योर हैंड्स। संजना, दीक्षा, अनम्यूट योरसेल्फ। संजना एंड दीक्षा। संजना, आपको समझ आ गया बेटे? हाँ जी संजना, स्पीक अप। Is the concept is clear to you? Yes. दीक्षा, ऐसा तो नहीं है some of the students they have on their mobiles but they are not listening to me? हाँ जी हरजोत, हरजोत unmute yourself. Yes ma'am. बेटे कोई दिक्कत इस कंसेप्ट में? No ma'am, no. कोई प्रॉब्लम? जैसी आपको कोई प्रॉब्लम बेटे? सब कुछ ठीक है? No. ओके। Yes ma'am. हाँ जी बेटे, बाकी सभी स्टूडेंट्स को, जैस्मीन, जशन, किसी भी स्टूडेंट को कोई अभी यहाँ पे कोई भी चीज पता नहीं लगी है, देन प्लीज स्पीक अप, अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट टॉपिक। अगर आप कुछ भी नहीं बोलेंगे तो मैं ये समझ लूंगी कि concept is clear to all of you. So I am proceeding with the next one. There is a very short paragraph given on page number 108 and the topic is transcription unit and gene. Okay बेटे, तो what he is saying here कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में हम जान चुके हैं कि there are three components. Promoter region is there, then structural gene is there, and then we have what? तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन के बाद हमारे पास टर्मिनेटर रीजन होता है। ठीक है, तो फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस व्हाट वी आर जनरली टीचिंग यू, हम आपको ये बताते आ रहे हैं कि जीन्स आर स्पेशल टाइप ऑफ यूनिट्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द डीएनए। ओके बेटे, बट नाउ आई वांट टू रिवाइज दिस डेफिनेशन। ठीक है, हियर आई वांट टू टेल यू दैट देयर आर नथिंग लाइक जीन्स प्रेजेंट ऑन द डीएनए। अब मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ। मैं आपको ये कहती हूँ कि ऐसा नहीं है, आपके माइंड में एक इमेजिनेशन होगी कि डीएनए एंड डीएनए के ऊपर स्मॉल सर्कुलर बॉडीज हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं। ठीक है, तो नाउ ऐसा नहीं है, देयर इज अ लिटिल बिट complicated definition what I am discussing with you. So here I replace the term genes with a new term that is cistron. ठीक है, तो सिस्ट्रॉन जो है वो मैं किसी भी ऐसे डीएनए सेगमेंट के लिए नाम लूंगी, दैट डीएनए सेगमेंट व्हिच कोड फॉर प्रोटीन।
तो मैं कहती हूँ कि जीन और सिस्टोन जो है इट इज एक्चुअली, ठीक है, नथिंग लाइक अ थिंग दैट इज एक्चुअली attached on the DNA, but it is itself the part of the DNA that is coding for proteins. ठीक है, आपको हम कई बार कह चुके हैं कि one gene always give birth to one enzyme and one enzyme catalyze a reaction and produce one protein. तो आप सोचते होंगे कि डीएनए पे एक जीन प्रेजेंट है, वो जीन क्या करता है, एक एंजाइम बनाता है, वो एंजाइम एक रिएक्शन कैटालाइज करता है और उससे प्रोटीन्स बनते हैं एंड प्रोटीन्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो इनमें फंक्शन प्ले करते हैं। पर अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर मैं जीन की जगह पे सिस्टोन वर्ड यूज करती हूँ तो वो इसकी एक एडवांस फॉर्म है। ठीक है, मैं आपको ये बस बताना चाहती हूँ कि डीएनए पे कोई जीन प्रेजेंट नहीं है, डीएनए की ही खुद की ऐसी सेगमेंट जो प्रोटीन्स के लिए कोड करती है, डीएनए का कुछ पार्ट जो प्रोटीन के लिए कोड करता है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोन कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एंटायर डीएनए इज कोडिंग फॉर प्रोटीन, ठीक है, सारा डीएनए प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर सकता। ओके बेटे, कुछ पार्ट जो है डीएनए का प्रोटीन्स बनाता है, फिर कुछ बीच में गैप आ जाते हैं जो कुछ नहीं बनाते, फिर उसके बाद कुछ पार्ट ऐसा है जो प्रोटीन्स के लिए कोड करता है, फिर कुछ पार्ट ऐसा है जो कुछ कोड नहीं करता। तो इसीलिए जीन्स एक्चुअली क्या है, जीन्स एक्चुअली डीएनए का अपना ही पार्ट है which code for the protein, not the entire DNA segment codes for the proteins. So that's why we here give an advanced term for this, and that is histone. So what he is saying here, that in case of prokaryotic organism and in case of eukaryotic organism, if I am talking about the structural gene, ठीक है, अगर मैं किसी जीन को स्ट्रक्चरल जीन का नाम देती हूँ तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि भाई स्ट्रक्चरल जीन जो है वो एक्चुअली मेरे हिसाब से एक ऐसा जीन है, एक ऐसी डीएनए सेगमेंट है, यहाँ डीएनए का एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, प्रोटीन के लिए कोड करता है। तो कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में ये स्ट्रक्चरल जीन जो है ना वो वेरी करते हैं। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो देखो यहाँ पे उसने आपके लिए बताया हुआ है कि स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज मोनोसिस्टोनिक इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के केस में जो स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं जो प्रोटीन्स के लिए कोड करती हैं वो कैसी होती हैं, मोनोसिस्टोनिक होती हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स ये कैसी होती हैं, पॉलीसिस्टोनिक होती हैं। ओके बेटे, तो यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस। तो इमेजिन करो कि कुछ पार्ट है डीएनए का जिसको मैंने एक जीन कंसीडर कर लिया, उसके बाद फिर कुछ पार्ट आता है जो कुछ नहीं कोड करता, फिर एक और पार्ट आता है, ठीक है, वो कोड करता है। तो यूकैरियोट्स के केस में इस तरह से जीन्स जो है उनके बीच में क्या है, गैप्स है। तो जीन्स के जो पार्ट, ठीक है, प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, लिसन टू मी केयरफुली स्टूडेंट, जीन्स के वो पार्ट जो प्रोटीन्स के लिए, जीन्स एक्चुअली है ही वो जो प्रोटीन्स के लिए कोड करता है, ठीक है, तो उसको तो हमने क्या बोला है, एंट्रॉन्स बोला है, और कुछ कोड नहीं करते हैं उनको हमने एक्सॉन्स बोला है। बिकॉज अब टाइम हो रहा है तो कल फिर से यही टॉपिक मैं लूंगी बेटे एक बार फिर से, और आपको बताऊंगी कि किस तरह से मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो डिफर करती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ओके चिल्ड्रन, तो आपने साथ साथ रीड कर लेना है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। Because my next class is going to be start, so I have to end the meeting now. Okay, but go through the topic up to page number 109. I will discuss the things again.